Hello friends, I am Priya ma'am and welcome to my channel. Let me introduce to you my experience first. My qualification is MSc B.Ed and I have 10 years experience of teaching biology and pre-medical entrance exam. Today I am going to share you how to score 360 marks in NEET biology by 1 month preparation. Yes, so there are some tricks and strategy which will definitely help you to get high score in NEET biology. So let's get started. Firstly, you should know that there are total 180 questions for NEET exam, means it consists 720 marks. Okay, now here biology, out of which 90 questions are asked for biology section and remaining 90 questions are asked for you can say that which is divided into physics and chemistry by 45 each. Okay, so now here biology, you must have known by this, biology is the backbone of NEET exam, means it holds 50% weightage. There are 5 strategies that you will need to follow. Let's go through those strategies one by one. Yes, first strategy is to follow NCERT textbook. Why NCERT textbook question arises? Because 90% questions are generally asked from NCERT textbook. Okay, and out of 90% questions, 65% question directly taken from theory and remaining questions generally based upon diagrammatic representation and you can say that correlation between two chapters, functions and basic concept of the chapters also. Okay, if you read the success story of Nalin Khandelwal, who secured All India first rank in this exam in 2019. So he also studied NCERT textbook for biology. Okay, he also preferred the NCERT textbook for biology. Okay, so according to my point of view, you have to prefer NCERT textbook plus one MCQ book of any good publication. You can refer Exemplar and Aryan publication also. Okay, कोई भी एक good publication का MCQ book plus NCERT textbook, यह आपको follow करना है, यह आपकी रहेगी first strategy. Okay, now let's move to the second strategy. Second strategy is chapter wise weightage. In biology, different chapters or units have a different weightage of questions. Okay, for example, ecology units have 10 to 13 questions, genetics unit have 10 to 12 questions and biotechnology unit have 5 to 7 questions. These are the examples. Okay, मैंने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल्स बताए. तो जैसे टोटल 38 चैप्टर्स है, तो 38 चैप्टर्स के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, और हर क्वेश्चंस के हिसाब से, हर चैप्टर्स के हिसाब से उसका वेटेज है. तो आपको क्राइटेरिया ये रखना है कि जिसको ज़्यादा वेटेज है ना, जिस चैप्टर को या यूनिट को, जैसे इकोलॉजी एक यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर्स है. ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 10 to 12 या 13 क्वेश्चंस यहाँ इस यूनिट में से एग्जाम में आते हैं. तो आपको ऐसे यूनिट्स है जो हाई वेटेज वाले यूनिट्स को पहले प्रीफर करना है, अच्छे से उसके एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी भी आपको सॉल्व करना है, नो डाउट. तो मेरा मानना है कि आपको चैप्टर वाइज वेटेज से ये पता चलता है कि हर यूनिट का, हर चैप्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस है और वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर हम 10 भी क्वेश्चंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक जेनेटिक्स की यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट में से 10 क्वेश्चंस अगर आते हैं और वो उस यूनिट्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने उसका स्टडी किया है, क्योंकि उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो. इस तरह से उसका आपने क्या बोल सकते हैं, डिटेल स्टडी किया है. तो उस केस में 10 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते हैं करेक्टली, तो आपके 40 मार्क्स यहीं पे हो जाते हैं. तो मिस आपको पता है कि पहले भी मेरे को जेनेटिक्स पढ़ना है या इकोलॉजी पढ़ना है ना, या और भी बाकी भी यूनिट्स है, फिजियोलॉजी है, तो हर यूनिट्स को, हर चैप्टर्स को एक अपना एक क्वेश्चंस का वेटेज है. तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको पढ़ना है. तो जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे स्मार्ट स्टडी. ठीक है, अभी तक आपने साल भर हार्ड स्टडी तो की है, नो डाउट, लेकिन इस 1 मंथ में आपको क्या करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. ठीक है, तो पहले है चैप्टर वाइज वेटेज. जो हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी मैंने आपको बोला है कि चैप्टर वाइज वेटेज आपको रखना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है. जो हायर वेटेज ऑफ क्वेश्चन जिस चैप्टर में से, जिस यूनिट्स में से आते हैं, उसको आपको पहले फॉलो करना है, अच्छे से उसको पहले आपको स्टडी करना है. ठीक है, उसके बाद
जो नेक्स्ट अभी यहाँ पे 38 चैप्टर्स है, तो 38 चैप्टर्स का तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती कि हर यूनिट को कितना क्या क्या कितना वेटेज ऑफ क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो स्पेशली चैप्टर वाइज वेटेज पे है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। और इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा यूट्यूब पे, जैसे हमको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्ट्रेटेजी, रेफर 10 years प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। ओके, एटलीस्ट यू शुड सॉल्व 7 to 8 years क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि हर साल अगर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, हर साल वो क्वेश्चंस फिक्स है कि जो आने ही वाले हैं। आप जितने भी 7 to 8 years के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कुछ क्वेश्चंस 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट हो चुका है। तो 7 to 8 years क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर सॉल्व करते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंस है, कि भाई ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ है तो यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 to 8 years क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करना ही है, और कम से कम 10 years के क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस 10 years के क्वेश्चन पेपर्स आपको रेफ़र करना है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी। नाउ द नेक्स्ट इज लेट्स मूव टू द फोर्थ स्ट्रेटेजी। Now let's move to the fourth strategy, prepare key points. Key points is very helpful for your study because from the key points you can easily understand the way of question. Okay, what is the demand of question? Means it is easier to remember the whole chapters in the form of flowchart, diagrammatic representation और short notes. तो की पॉइंट्स यानी क्या है? की पॉइंट्स हम फ्लो चार्ट्स जो भी हम नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है या फ्लो चार्ट्स है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको भी की पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर्स का अगर हम सब पॉइंट्स लेते हैं, उस सब पॉइंट्स को अगर हमको याद करना है तो वो उसको हम की पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर्स के आप शॉर्ट नोट्स की तरह एक की पॉइंट्स निकाल लो और वो की पॉइंट्स को आप लर्न करो अच्छे से, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से आपको ये तो पता चल जाता है कि 2 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अभी ये तो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स के जैसे तो कैलकुलेशन करके हम आंसर तो नहीं निकाल सकते या फिर टैली नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, तो उसके बेसिस और जो भी कॉन्सेप्ट है जो हमारे क्लियर है, उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको क्लोजेस्ट 100% आंसर अगर आपको चाहिए तो इस केस में आपको की पॉइंट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर किसी चैप्टर्स का आपको फ्लो चार्ट्स आपने बना लिया, उसके शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, तो वो आपको जल्दी से याद हो जाएगी या फिर इट वुड बी ईजियर टू रिमेंबर। ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड ऑफ क्वेश्चन, है ना। की पॉइंट्स हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो उस हिसाब से हमें की पॉइंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो ये हमारी है फोर्थ स्ट्रेटेजी। और नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड फाइनल स्ट्रेटेजी। ओके, सो फिफ्थ और फाइनल स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा है अवॉइड निगेटिव मार्किंग। तो टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको नो डाउट टाइम मैनेजमेंट आपको जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको बोला है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कम से कम 7 to 8 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो उसको टाइम बाउंड शेड्यूल लगाना है। टाइम बाउंड शेड्यूल यानी क्या? तो आपको टाइमर लगा के ही पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो क्या बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट है कि भाई इतने क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस मुझे बायो के सॉल्व करने हैं और उसमें से हमें कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ठीक है, वो भी आपको एक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। तो टाइम बाउंड शेड्यूल आपको रखना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। तो टाइमर लगा के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम बोल सकते हैं कि अवॉइड निगेटिव मार्किंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग में जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम असर करता है निगेटिव मार्किंग में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे और हम उसको प्रीफर कर रहे हैं पहले, तो फिर क्या होता है वहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं जिसका आंसर आप श्योर हो, ठीक है, या फिर आपको पता है 100% आपको पता है हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में आपको वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन जो आपको श्योर हो आप आंसर उस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर आएगा और टेंशन भी नहीं आएगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जैसे हम बोल सकते भाई हाँ मुझे ये क्वेश्चन आते थे लेकिन मुझे टाइम ही उतना नहीं हुआ है, उतने टाइम में मेरा नहीं कवर हुआ है। तो इस केस में आपको अवॉइड करना है अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस दिस क्वेश्चंस विच इज़ श्योर फॉर योर आंसर, ओके। तो आपको यही क्राइटेरिया रखना है कि पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसका आंसर आप श्योर हो, और उसके बाद फिर आप बाकी क्वेश्चंस को देख सकते हो या फिर उसको। If you follow these 5 strategies properly and consistently, I am pretty sure you will definitely crack the exam. So be confident, be positive and study hard. If you like my video, then subscribe my channel and press bell icon for notification. Thank you.